Well, hello everybody. We are starting with biology and 11th science. This is the first introductory lecture to the subject. Now you know that in science we very often use the Greek words. If you look at the word biology, bios, if you look at the word bios, means living things, and logos means to study. So biology is a life science of study of living things. That is what exactly is biology. And under this is the being first lecture. It is an introductory lecture about biology. The question is, what do we study in biology? In biology, we study about botany. That is, we study plants. We have another section, that is zoology, where we study everything about animals. So here, being an introductory lecture, I am just giving you some rough idea about biology. Another question is, we study living things. The question is, what is meaning of being alive? जिंदा है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of being alive? Plant is alive, that animal is alive, living, that is. What is the meaning of that? What is the meaning of you are living? You are living, your cells are working. Your each and every cell is working. Your skin cell is working. Your muscle is working. I'm talking to you. My brain is giving order to my muscles. And my muscles are working accordingly. That is what I am living. And you know that living things are made up of cells. Suppose this is a cell. What is this part called? As you know, we call this as a nucleus. This liquid is called as cytoplasm. This liquid is cytoplasm. This is the plasma membrane. All your cells are more or less like this. Of course, brain cell, your brain cell is stellate. Stellate यानी कि star shaped. Your muscle cell is something like this. Your muscle cell is something like this. Your skin cell is something like that. Your liver cells are something like this. Your liver cells are something like that, having cytoplasm. Look at that. Cytoplasm. Cytos means cell, plasm यानी कि फ्लूइड, लिक्विड. अभी सब देखो, आप लोग है ना, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, आप लोग आप एक नोटबुक रखो अपने पास. हाँ, जब मैं आपको ये बताता हूं तो आप लोग ये लिख लेंगे. एंड राइट दिस इन अ notebook, that is dictionary. Make your own biology dictionary. Now I'll show you one dictionary. Okay, I'll show you one dictionary. डिक्शनरी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ. यार रुको, हाँ, मैं डिक्शनरी मंगाइए, आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है डिक्शनरी. सो हियर सेल प्लाज्म, दैट इज लिक्विड. साइटोप्लाज्म, fluid or liquid inside the cell is cytoplasm. All your cells are something like that. This is a normal cell structure. This is your muscle cell. This is your nerve cell in your nervous system. This is the muscle cell in your skeletal system, made up of muscles and made up of bone. Okay. Now look at this. So these are the different types of cells. All these different cells in your body. For example, your muscle cell. Many muscle cells. This is one muscle cell, another muscle cell, one more muscle cell,
one more muscle cell. Many cells together will form tissue. Many cells together is called as tissue. So your body is made up of cells. All the cells together will form a tissue. Many tissues will together form an organ. For example, look at this: skin tissue, muscle tissue. Inside there is a bone tissue. So these are different tissues. They will form your organ. And all the different organs together will form your body. We call this as levels of organization. That is how your body is formed. Alright. So this is what exactly we are going to study for the next 2 years, that is in 11th and 12th. Of course, one by one we have to study all those things. Let us first of all understand what is the meaning of being alive. Let's get it. So, I am living, my muscle is working. When I say my muscle is working, my muscle cells are contracting. In my muscle cell, there are proteins. Now you have studied what are those proteins. Anyway, did you write this in your dictionary? I'll show you what is a dictionary. Purchase such a book. Alright, here you can see there is ABCD. For example, you want to write about stellate. Go to S, write the meaning of what stellate. You will have your own dictionary. And studying from your own dictionary is going to be a fantastic thing. It's very important. Studying from your dictionary is very important. Okay, so stellate, that is star shape, you wrote in the dictionary. Next time when you are studying, you got any problem? बाद में याद नहीं आ रहा है स्टिलेट का मतलब क्या हुआ, ढूंढो मत, जाओ स्टिलेट में एस में जाओ, ढूंढो, यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका खुद का एक डिक्शनरी रेडी हो जाएगा. सो हैव अ डिक्शनरी लाइक दैट एंड जस्ट यूज इट. नाउ बीइंग अलाइव, that the cell is living. When I say, suppose this is a cell with a nucleus, there is cytoplasm there is endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, all those things are there. This cell is living. You are living, plant is living, meaning this cell is living. Now what is the meaning of this cell is living? When I say the cell is living, inside the cell, chemical reactions are going on. And what are those chemical reactions? Let's understand. So you will have your own dictionary and you keep on writing while the lecture is going on. Keep your notebook ready, pen ready, keep on writing the thing. Because when you write in your own handwriting, you understand it better. Alright? So this is it. So when I say you are living, a plant is living, a bacteria is living, meaning what? Inside that particular cell, chemical reactions are going on. We call this as metabolism. Metabolism means activities taking place in a body. Now there are two types of activities under metabolism. There will be two types of activities. One is anabolism and second is catabolism. Now these words will keep on coming next 2 years. आप ये जो words है वो पूरे 2 साल, अगले 2 साल आने वाले again and again. Anabolism means in your body something is being synthesized. Synthesis. Catabolism इसका मतलब हो गया breakdown. Then what is the meaning of synthesis? Production. For example, in your stomach, acid is produced. In your stomach, intestine, enzymes are produced for digestion of food. So here, synthesis, production of substances.
Production of substances. Catabolism is breakdown of substances. इसका एक एग्जाम्पल देते हैं. Let us take one example. Let us understand photosynthesis. I'm talking about in general, but because under biology we are going to study botany also, zoology also. That means plants also, animal also. So I am taking example of photosynthesis as a anabolism. Catabolism का example आप लोगों को मालूम है, that is respiration. लेकिन ये respiration कौन सा? Cellular respiration. So what is the meaning of this? Have a look at that. चलो जरा photosynthesis अब देखते हैं. Actually what I am doing is I am teaching you some basics of biology. तो इसमें से आप थोड़ा बायोलॉजी का बेसिक समझ जाओ. फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस क्या है देखो. फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ एनाबोलिक प्रोसेस. एक एनाबोलिक प्रोसेस है. कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है. कैसे होता है देखो जरा. 6CO2 plus 12H2O gives one molecule of C6H12O6. क्या है ये आपको मालूम है? बोलो जी. ओके, दिस इज ग्लूकोज प्लस 6H2O plus 6 molecules of oxygen are released. और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आप लोग अभी यूज कर रहे हो. You are doing the breathing, you are doing the respiration. There, this oxygen is being used. So here, carbon dioxide and water to produce glucose. Where is it taking place? This is taking place. आपको मालूम होगा, chloroplast in plants. तो ये anabolism हो गया. So if that plant is producing glucose, something is happening. कुछ हो रहा है. Chemical reactions are taking place. This is anabolism. In your body there is anabolism. Yes. In your nose mucus is produced. क्या है भैया? Anabolism है. आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स तैयार हो रहे हैं, एसिड तैयार हो रहा है. वो क्या है? Anabolism. प्रोडक्शन है. Something is being produced in the body. Maybe you are getting something. Okay. So this is anabolism. I'm teaching you what is the meaning of living. Living का मतलब क्या हुआ? फूड तैयार हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये लिविंग कैरेक्टर है. प्लांट इज लिविंग. व्हाई? प्लांट इज प्रोड्यूसिंग फूड. दैट फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, दैट इज ग्लूकोज. ये जो तैयार हो रहा है ना, that glucose will be used by the plant for its own growth. तो हाइट बढ़ेगा. प्लांट का हाइट बढ़ रहा है. थिकनेस इज इंक्रीजिंग, हाइट इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब क्या हुआ? लिविंग, जिंदा है. यू आर ऑल्सो ग्रोइंग इन साइज. You are also living. In your body chemical reactions are going on. I am living. My body is working. My cells are working. My muscle is working. My brain is working. I am talking to you. So I am living. For that energy is required, because you know that no work can be obtained without spending energy. I repeat, no work can be obtained without spending energy. तो फिर क्या हो गया? देखो, रेस्पिरेशन. ये देखते चलो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, एंड इट इज अ कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म मतलब क्या हुआ? ब्रेकडाउन हो रहा है आपके बॉडी में इस वक्त. इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव हर्ड अबाउट इट. डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल. So in your cell, this is happening. In your mitochondria, this is happening. This is happening in mitochondria. क्या हो रहा है? देखो, यहां ग्लूकोज तैयार हो गया है. The glucose is produced in the plant. In the plant, by the process of photosynthesis, glucose is produced. Synthesis.
You eat those plants, you eat the food that will come in your body, glucose will come in your body. So that glucose C6H12O6 combines with 6 molecules of oxygen to produce 6 molecules of CO2, 6 molecules of water plus 38 ATP molecules are produced. आपको याद है व्हाट इज एटीपी? याद है आपको? क्या है उसका लॉन्ग फॉर्म? एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है भैया? ये है केमिकल एनर्जी। हियर दिस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां लाइट की जरूरत होती है। यहां क्या होती है? लाइट की जरूरत होती है। So here light energy is converted into glucose. Glucose is a type of chemical energy. So one form of energy is converted to another form of energy. Living, जिंदा हो। Plants are living, animals are living. Conversion of one form of energy into another form of energy. In plants, in your body, glucose in your body. This glucose, which is a form of chemical energy, ध्यान दे दो, ठीक से समझो। In your body, glucose, which is a form of chemical energy, is converted into another chemical energy. One form of energy is converted to another form of chemical energy. तो आप पूछोगे ये ग्लूकोज केमिकल एनर्जी है, इसमें कन्वर्ट किया, आपको दूसरा केमिकल एनर्जी मिल गया, क्या जरूरत है इसकी? इज इट रियली रिक्वायर्ड? इसको डायरेक्टली क्यों नहीं यूज किया? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का कन्वर्ट एटीपी में करो, फिर एटीपी का यूज करो। माय मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो ठीक से देखो, नहीं ठीक से समझ लो। माय मसल इज वर्किंग, आई एम लिविंग, माय मसल इज वर्किंग, इन माय मसल दिस इज हैपनिंग। तो क्वेश्चन इज व्हाई? क्या जरूरत है इसकी? आप ये ग्लूकोज केमिकल एनर्जी है, ये दूसरा एनर्जी, इसका डायरेक्ट यूज करो ना। नहीं हो सकता है। इंडिया में आप क्या यूज करते हो? रुपीज। डॉलर यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इंडिया की करेंसी रुपीज है। अमेरिका यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है। वहां आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा, इंडिया में आपको रुपीज यूज करने पड़ेगा। ये अपना करेंसी है। अपने बॉडी का करेंसी कौन सा है? एटीपी। माय मसल सेल कैन यूज दिस एनर्जी, नॉट दिस एनर्जी। अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आप सुन रहे हो, मतलब क्या हुआ? साउंड एनर्जी। क्या वो साउंड एनर्जी आपके बॉडी में यूज हो सकती है? हीट एनर्जी इज अराउंड मी, कैन आई यूज दिस एनर्जी इन माई बॉडी? नो, आई हैव टू ईट। सनलाइट एनर्जी आ रही है, sunlight energy is coming to my body, can I use this energy? No. Sunlight energy will be converted to glucose, फिर मैं खाऊंगा, मेरे बॉडी में आ जाएगा, डाइजेशन होगा, फिर मेरे ब्लड में से थ्रू माय ब्लड इट विल गो टू माय सेल्स, एंड इन माय सेल दिस ग्लूकोज विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी, एंड देन माय सेल्स विल यूज दिस एटीपी, आई एम लिविंग। कुछ समझ रहे हो? डिफिकल्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। सामने व्हेन अ सेल इज लिविंग, एनिमल इज लिविंग, प्लांट इज लिविंग। लिविंग का मतलब मेटाबॉलिज्म, केमिकल एक्टिविटीज। अभी ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटीज बेसिकली केमिकल एक्टिविटी। व्हेन आई टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म का डिक्शनरी मीनिंग देखो क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। सम टोटल मतलब इसमें सम टोटल में क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा एनाबॉलिज्म, दूसरा आ जाएगा कैटाबॉलिज्म। सो दिस इज हैपनिंग इन माय बॉडी, दैट इज कैटाबॉलिज्म। इन माय स्टमक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज एनाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इन माय बॉडी ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय माय ब्रेन। My brain is giving order. In my brain, my nerve cell
produce impulse, produce impulse. This is biological current. In your body current is produced. कभी कभी आपको वो समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नर्व हियर. ओके, ऐसा अगर कभी हो जाएगा, देयर इज सम ऑब्जेक्ट एंड यू स्ट्राइक अगेंस्ट सम ऑब्जेक्ट, यू सडनली फील यू आर गेटिंग शॉक. ऐसा लगता है कि शॉक लग रहा है. अरे कहाँ भैया, कोई वायर तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपके बॉडी में वायर है, नर्व्स, आपके बॉडी में करंट है. ये क्या हो गया? यू आर डिस्टर्बिंग दैट नर्व. आपको समझ में आ रहा है कि अरे भैया शॉक लग रहा है. नहीं नहीं नहीं, करंट आपके अंदर है. कौन सा? इंपल्स. ये बायोलॉजिकल करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये अलग है भैया. इन योर बॉडी देयर इज अ डिफरेंट करंट. ये जो करंट है वो आयोनिक करंट है. इट इज बिकॉज ऑफ आयन. और ये जो करंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रिक करंट है. हमारे बॉडी में है वो बायोलॉजिकल करंट है, वो आयोनिक करंट है. ये इलेक्ट्रॉन के कारण है. तो दो में फर्क है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, सो देयर इज अ करंट इन योर बॉडी. सो इन माय ब्रेन दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड. तो यह करंट तैयार करना है, करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. अगर करंट तैयार करना है तो एनर्जी चाहिए. आपके मोबाइल में आप बैटरी चार्ज करते हो, फिर करंट से आपके वो मोबाइल चलता है. मतलब क्या हुआ? दैट मीन देयर इज एनर्जी, देयर इज एनर्जी. दैट एनर्जी इन माय ब्रेन विल प्रोड्यूस दैट करंट. दैट इज अनदर एनर्जी. देन दैट करंट विल पास टू माय मसल सेल. In my muscle cell, that electrical current, this biological current from my brain comes to my muscle cell, and in my muscle cell there are certain proteins. These proteins contract chemical energy. So electrical energy, chemical energy, muscle contract, I am living. What is the meaning of dead? मर गया. क्या हुआ? Those reactions stop. Full stop. मर गया. A plant will die, animal will die if those reactions stop. Being alive, तो हमने आज क्या पढ़ा? Being alive, being alive, हम ये पढ़ रहे हैं. Whether it is a plant, whether it is an animal, whether it is a bacterium, whether it is a fungus. Of course, don't include viruses in this. Viruses आपको मालूम है, viruses has got dual character. They are living also and non-living also. And since they show non-living character, अभी आप सोचोगे कि ये समझो ये आपका सेल है, और अभी मैं यहाँ वायरस का डायग्राम ड्रॉ करता हूं. देखो ये वायरस है, ये वायरस है. इसके अंदर एक डीएनए और आरएनए, इसके अंदर एक डीएनए और आरएनए होगा. और आपके न्यूक्लियस में यहां डीएनए है, फर्क देखो. दिस इज लिविंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, सब कुछ है. सेल इज लिविंग. इसमें साइटोप्लाज्म है ही नहीं. यहां साइटोप्लाज्म है, केमिकल रिएक्शन हो रहे सब. ये यहां साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं है. नो साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म, नो सॉल्यूशन, नो रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन नहीं ना. अगर यहां कोई साइटोप्लाज्म है ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, फिर ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसको बोलते हैं कैप्सिड. कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, नो। सेल ऑर्गेनिल, इसको सेल ऑर्गेनिल बोलते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनिल। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिल। इसमें है सब कुछ, इसमें कुछ नहीं भैया, है ही नहीं कुछ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अरे भैया सॉल्यूशन नहीं है तो रिएक्शन कहां से होगा? इसीलिए तो वायरस नॉन लिविंग है। फिर डिसीज कैसा होता है? मतलब लिविंग कैरेक्टर भी है। वायरसेस डबल कैरेक्टर होते हैं वायरसेस में, एक लिविंग कैरेक्टर भी होता है, दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होता है। ये देखो ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये वायरस अगर आपके सेल से चिपक गया, when this virus get attached to your cell, it will make a hole, ये डीएनए अंदर आता है, and this DNA will produce RNA, this RNA will produce proteins, and these proteins will bring about chemical reactions in your cells, and these abnormal chemical, जब ये वायरस आपके सेल को अटैच हो जाएगा, दिस इज योर बॉडी सेल, गॉड ब्लेस यू, डोंट सफर फ्रॉम एनी डिसीज। लेकिन अगर हो गया ऐसा, नॉट नेसेसरी कोरोना वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कितने वायरस होते हैं। हाँ? ये जो वायरस है जब आपके सेल को अटैच हो जाएगा तो ये डीएनए या आरएनए जो भी है अंदर वो सेल में चला आता है, और ये एबनॉर्मल केमिकल है, इट विल इंड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शन। वो क्या करेगा? एबनॉर्मल रिएक्शन शुरू करेगा और एबनॉर्मल केमिकल तैयार हो जाएंगे, और ये जो केमिकल बनाए बाय यूजिंग दोस केमिकल्स, और वायरस अपने सेल में तैयार हो जाएंगे। मेनी वायरसेस, मतलब ये डीएनए अंदर आ गया, ये वायरस का डीएनए अंदर आ गया, ये कैप्सूल अंदर नहीं आता है, नहीं, सिर्फ डीएनए अंदर आता है। और ये डीएनए क्या करता है? बाय यूजिंग आवर सेल केमिकल्स, दिस डीएनए विल प्रोड्यूस मेनी मोर वायरसेस, इट विल बस्ट ओपन, सेल विल बस्ट ओपन, और देखो कितने वायरस बाहर निकल आए। क्या हुआ? फ्रॉम वन वायरस हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या करता है ये वायरस? क्या करता है? दिस वायरस विल यूज योर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। मतलब क्या हुआ? वायरस इज लिविंग। इसका मतलब है वायरस इज लिविंग। लेकिन इसको देखो अलग से देखो ये वायरस को, इसको सी द वायरस सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली। एक केमिकल है, उसके अंदर एक केमिकल है, साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है। सोचो जरा। So here you can see being alive means reactions are going on in the body. I told you, and living things are what? Now this is related to what? हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about plants, animals, bacteria, fungi. These. I'm not talking about virus because I told you about virus. Just before some time I told you about virus. That viruses show living as well as non-living characters. That is the problem with the virus. Okay. Now look at this. Well, did you get this? Huh? You want to write this? Okay, you can write this. I'll give you 1 minute. Come on, write it.
Well, you can again go to the point and again see the video again if you want to do that. Okay, let's go ahead. So I told you that you should have a dictionary also with you, so that you can write in the dictionary those important words, because each word that we are writing here can become a question for your NEE. So this dictionary is going to be really very important. Alright, I'll keep it here like this. Alright, so this dictionary is going to be really very important. Your own biology dictionary, that will be fantastic. Okay, so there you go. Now let's understand something more about the basics of biology. Today I am going to discuss one more thing, because we are going to use this very often in biology. Okay, now we see cell. Body of organisms. Organisms means what? Living things, plants, animals. The body is made up of cells. Your body is made up of cells. My body is made up of cells. Plant body is made up of cells. Okay, so that is what exactly we say. Then what are the different types of cells on the earth? Have a look at this. Understand it carefully. Huh? Basically, there are two types of cells. Basically, I said one is eukaryotic cell. One is eukaryotic cell and the other is prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Now, this eukaryotic cell and prokaryotic cell, what is the difference between the two? Under the eukaryotic cells, you get some kingdoms. Under this, you get all the bacteria. What are you? You are eukaryotic. Now the question is, what are those words? Eukaryotic, prokaryotic. All right. Eu means true. Carry on. Carry on means nucleus. True nucleus. Then what is this pro? Pro means primitive, यानी कि old. ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन में जाना चाहिए. इवोल्यूशन, अब ये इवोल्यूशन क्या होता है आप लोगों को मालूम है? आप में से कुछ लोग बहुत भुलक्कड़ हो, भूल जाते हो. एक फनी डेफिनेशन बोलता हूं आपको मैं. The good memory is that memory which forget the thing easily, so that your brain is empty to receive more things. क्या आप सब कुछ याद रखते हैं? 5 दिन पहले आपने क्या खाना खाया, 6 दिन पहले क्या खाना खाया, याद है कुछ? नहीं ना. Our brain is very choosy about what to remember and what to forget. हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा है अभी तक याद है, लेकिन 8 दिन पहले हमने क्या किया पूरे दिन में याद नहीं है. आप सब कुछ याद नहीं रखते हो. योर ब्रेन इज सच एफिशिएंट स्ट्रक्चर, एक फैंटास्टिक स्ट्रक्चर है. याद रहते, कुछ भूल जाते. इवोल्यूशन डेफिनेशन भूल गए होगे, याद रखो. Evolution, it is a slow process of change. Slow process of change from simple to complex. हम थे ही नहीं, डायनासोर्स थे.
we as a human being came on the earth 1 million year ago. 10 लाख साल पहले हम लोग आ गए. हमारे पहले अलग थे, उनके पहले अलग थे. If you go and understand the story of evolution of earth, अगर आप अर्थ का स्टोरी देखते हो, you will come to know, you will understand one thing, that 900 million years ago they came on the earth. This is kingdom. This is kingdom. This is kingdom Monera. This is kingdom Monera. यूकैरियोटिक में कौन कौन आएंगे भैया? किंगडम, इसमें आएंगे प्रोटिस्टा, इसमें आएंगे प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा मतलब बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया इधर आएगा. ये सब बैक्टीरियाज है. सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल. अगर ये बैक्टीरियल सेल है, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया. प्रोटिस्टा, इसमें आए अमीबा वगैरह, वो लोग आएंगे. अब प्रोटिस्टा, फिर इसमें कौन आएगा? प्रोटिस्टा आएगा. इसमें और आएगा प्लांटी, एनिमालिया एंड फंगाई. 4. So Protista, Plantae, Animalia, Fungi, they will be here, and Moneras only one. So one kingdom is here, and there are 4 kingdoms under eukaryotic cell, and just one kingdom under prokaryotic cell. मतलब सिर्फ मोनेरा में ऐसा सेल होगा, और Protista, Plantae, Animalia, Fungi, they will have such a cell. Your body cell, for example, your cell. This is plasma membrane. ये तो इधर भी है. यहां एक न्यूक्लियस होगा. यहां न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है. Here you find क्या ये सुना होगा आपको? ये है डीएनए. There is a nuclear membrane. ये तुम्हारा बॉडी सेल है. ये बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया ऐसे होते हैं. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसलिए क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक. प्रो प्रिमिटिव, जो पहले आया था. अर्थ when formed, what came on the earth first? पहले क्या आया अर्थ पे? बैक्टीरिया. इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, ओल्ड, पहले आ गए. दे केम वेरी अर्ली, पहले आ गए, इसलिए नाम दिया है प्रिमिटिव. इसलिए नाम दिया है प्रोकैरियोटिक सेल. A cell having primitive nucleus. देखो cell having a primitive nucleus. Cell having true nucleus. True nucleus मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड. समझ लो अच्छे से. न्यूक्लियोइड, ओइडा, लाइक ओइडा ग्रीक वर्ड है. न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस लाइक, कॉमा, नॉट अ रियल न्यूक्लियस एज इन बैक्टीरिया, यानी के मोनेरा. अभी आप बोलोगे कि ये क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, किंगडम फंगाई. Now they are all different types of living things on the earth. आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मैं बस डिवीजन ले रहा हूँ. आप लोगों को मालूम है एक्चुअली, you know this. Okay, so this is the prokaryotic cell, that is Monera. बाकी 4 kingdom मतलब प्रोटिस्टा यानी कि अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस. ये जो 4 किंगडम है उनमें से ऐसा होगा, और उसके अंदर डीएनए है.
उसके अंदर डीएनए, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वी कॉल दिस एज द न्यूक्लियस। ये डीएनए अंदर है, ये डीएनए उस पे कवर है नहीं। सो डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए हैज गॉट नो कवर, इसलिए बोलेंगे न्यूक्लियोइड। बाकी ये जो है यहाँ लिक्विड, क्या बोलते हैं लिक्विड को, हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, उसका याद है आपको? ये क्या भैया? दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ है, यहाँ नहीं है, न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये सिंपल न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्गी बॉडीज होगा, बाकी स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ नहीं है। यहाँ राइबोसोम है, यहाँ भी राइबोसोम है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि राइबोसोम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ है, यहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है। फर्क किसमें है? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज इन द डीएनए इज एक्सपोज्ड, नेकेड डीएनए, उसके ऊपर कवर नहीं है, डीएनए के ऊपर कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ नहीं है। तो ये हो गया बेसिक बायोलॉजी। आपके 11th साइंस का ये पहला लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमको वो पढ़ना है, पहले बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, यू शुड नो दिस। ओके, आई विल गिव यू 1 मिनट, कम ऑन, जस्ट स्टडी दिस फॉर 1 मिनट। आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट देता हूं, चलो स्टडी करो उसका। पढ़ रहे हो आप लोग? देख रहे हो? वेरी गुड। और ये आप लोगों ने लिख लिया डिक्शनरी में? मैंने बोला आपको डिक्शनरी बनाने के लिए। लिख लो, लिख लो, डिक्शनरी में लिख लो। So let's understand, you are eukaryotic animal. That means your cells are like this, having a true nucleus. Where there are bacteria which are monomeras, they have a nucleus like not a real nucleus. तो आप लोगों ने ये न्यूक्लियोइड का ये जो है डिक्शनरी में लिख लिया। अगली बार जब कहीं पे आएगा, या तो यहाँ जो लिखा है ना, ये आप डिक्शनरी में लिखोगे। सो अगले टाइम जब आपको याद नहीं आ रहा, अरे न्यूक्लियोइड मैंने तो कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ डिक्शनरी में जाओ। मैंने आपको दिखाया ये डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी इधर लिखा है ABCD। न्यूक्लियोइड कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियोइड मैं इसमें लिखा है, चलो न्यूक्लियोइड क्या है स्टडी करें। तो डिक्शनरी बहुत जरूरी आपके लिए, परचेस कर लो, मार्केट में मिल जाएगा ये, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट, ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पार्ट नाउ अबाउट किंगडम। सो एक बार आपको समझ में आ गया कि सेल्स के टाइप क्या होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के सेल,
अभी आप बोलोगे कि ये प्लांट पे और एनिमल पे सेल ऐसे होते हैं क्या? नहीं, ये बेसिक है, ये बेसिक है। एक्चुअली आपको मालूम होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है। समझो ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अभी एक तो ऐसा लग रहा है इसे, ये समझो कि एनिमल सेल है, ये समझो कि एनिमल सेल है। आपको मालूम है ये, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है 9th में 10th में, कई तो आपने ये ऑलरेडी स्टडी किया है, आपको मालूम है, ठीक है ना। अगर प्लांट सेल होगी तो क्या होगा, बोलो ये क्या है, कम ऑन, दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल होती है। और दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना होता है ये, मेनली सेल्यूलोज। दिस इज पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली ग्लूकोज, बाकी भी होगा, बाकी भी कार्बोहाइड्रेट्स में हो सकते हैं, लेकिन मेनली ग्लूकोज होगा। तो ये सेल वॉल होता है और अंदर इसके बड़ा वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल नहीं होते, और होंगे छोटे होंगे न्यूक्लियस। तो ये बेसिक डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर, थोड़े डिफरेंस तो होने ही है, फ्यू डिफरेंसेस आर ऑलरेडी देयर। प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके ग्रीन कलर आता है क्लोरोस। क्लोरोस का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है ग्रीन। क्लोरोस का मतलब क्या हो गया, क्लोरोस मीन्स ग्रीन। क्लोरोफिल होता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब है स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लास्ट, स्ट्रक्चर, लिखता हूं थोड़ी देर में। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये फर्क है, बट बेसिकली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल। ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस बहुत सिंपल है। आगे चल के हम लोग ये सेल और ये सेल जो है उसके बहुत सारे डिटेल हम लोग उसके पढ़ने वाले हैं बाद में। Okay, so as a first lecture, that is first lecture as a first introductory lecture, okay, biology जो लेक्चर हमारा था आज का, आप उसको चाहिए तो BL1 लिख सकते हो। अभी अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आई एम गोइंग टू टीच यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस सेल्स। देखो सिंपल चीज है, अगर आप प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, आपको अगर बेसिक मालूम होगा, ये बेसिक है बायोलॉजी का। Once you know the basics of biology, you can learn biology easily, you will understand it easily. तो मेरा काम क्या बनता है, आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ाऊं, ये मेरा काम। Once we learn the basics, आगे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। So that is all for the day. हम कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को NCERT की जो बुक्स हैं उसमें से स्टडी करना है। NCERT 11th बायोलॉजी बुक आपको परचेस करना है, या तो डाउनलोड करो, आप NCERT बायोलॉजी का बुक डाउनलोड करो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे। पहला जो टॉपिक है लिविंग थिंग, उसका स्टडी शुरू कर दो, क्योंकि वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरा तरीका अलग है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। At the same time, I am teaching you those Greek words, eukaryon, pro, ये oil, ये जो है ये क्लोरोस, ये ग्रीक वर्ड्स। और एक बार आपको ये ग्रीक वर्ड्स समझ में आने लगे, once you start understanding those words, अगर आपको समझ में आता है, biology is quite very interesting. You yourself is an animal, understand yourself. Okay? So we continue our lecture by tomorrow. Have a nice day.